أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الشعراء کی یہ 17 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 123 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 140 پر، اور یہ وہ پورا رکوع ہے جو اس سورت کا 7واں رکوع ہے. اس رکوع میں اور آیات کے اس مجموعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا تذکرہ فرمایا جس کو قوم عاد کہتے ہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ تھا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی مخالفت میں لگا ہوا فرعون، اس کا تذکرہ تھا. تقریباً 3 رکوعوں پر مشتمل وہ تذکرہ چلتا رہا. انبیاء علیہ السلام کا یہ تذکرہ اور رسولوں کا یہ تذکرہ یہاں تاریخی پیرائے میں نہیں ہے، ہسٹوریکل انداز میں نہیں ہے، بلکہ ان نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ اس سورت کی اس آیت کے انداز میں ہے جو آیت اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ ارشاد فرمائی اسی ایک سورت میں. ان ربک لہو العزیز الرحیم. یہی وہ آیت ہے جس کی تشریح ان قوموں کی داستانیں کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی قدرت والا ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، وہ پکڑ کرنا جانتا ہے، انتقام لینا جانتا ہے، لیکن وہ بڑا مہربان ہے، کرم فرما ہے، بہت مہلت دیتا ہے، اور بندوں کے ساتھ وہ بہت ہی مہربانی کا معاملہ روا رکھتا ہے. یہی حقیقت فرعون کی ضد، اس کی بغاوت، اس کی زیادتی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی دھمکی اس واقعے میں بھی نظر آئے گی. یہی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے میں بھی آپ کو نظر آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقار، حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی आजिज़ी इंकिसारी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन का तकब्बुर, नख़वत, हमियत, गुस्सा, यही चीज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के वाक़े में आपको नज़र आएगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का समझाना, बार बार समझाना, खैरखाही, तड़पना, रोना, गिरियादारी और कौम की जिद, नाफरमानी, बगावत, बदतमीजी, कौम को अल्लाह ताला ने मोहलत पर मोहलत दी, माफ फरमाया। कौम को अल्लाह ताला ने कई मौके इनायत फरमाए, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब बाज नहीं आई तो फिर फरमाया अल्लाह हुवल अज़ीज़। फिर अल्लाह ताला की कुदरत का मसला है, ये उसके इंतकाम का गोया सवाल हो जाता है कि आया वो अपने नेक बंदों की मदद करता भी है कि नहीं, आया वो अपने रसूलों की मदद करता भी है कि नहीं। लिहाजा ये सवालिया निशान जब पड़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से फैसला आता है। और ये सवालिया निशान कैसे पड़ जाता है? तारीख में उस वक्त, उस मरहले में जबकि रसूल खुद हाथ उठाकर अपनी कौम के सिलसिले में दुआ करता है, या आप चाहे तो उसको बद्दुआ कह लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा फफ्ताह बैनी व बैनकुम फतहन वनज्जिनी व मन मअिय मिनल मुमिनीन। अल्लाह आप फैसला कुन, आप यहाँ पर मरहला है और आप कोई ना कोई फैसला नाजिल फरमा दीजिए और मुझे, मेरी कौम को, मेरे ईमान वालों को आप नजात दे दीजिए। और सूरह नूह में और तफसील कर दी कि फरमाया रोए जमीन पर इन काफिरों में से किसी को आप जिंदा न छोड़े। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, ऐ नूह आप भी परेशान हो गए अपनी उम्मत से, अपनी कौम से, लिहाजा अब अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त करेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक तदबीर करनी है। तदबीर क्या है? अल्लाह ताला ने दूसरी सूरतों में मुख्तलिफ आयतों में ये बात इरशाद फरमाई कि नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कश्ती बनाएं। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान, बड़ी लक़दक कश्ती तैयार की और फिर कश्ती तैयार करने के बाद वो वक्त आ गया जो फैसले का वक्त था और पानी आसमान से भी बरसने लगा और पानी जमीन से भी उबलने लगा। फिर एक सैलाब आता चला गया और गुज़श्ता इतवार ये बात मैं आपकी खिदमत में रख चुका हूँ कि ये सैलाब आलमी था, आलमगीर था या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इलाके में था। मुअर्रिखीन का बड़ा इख्तिलाफ है, बहुत पुरानी बात है, इसीलिए चूंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी वजाहत नाजिल नहीं फरमाई, इसीलिए हमारे लिए भी कहना मुश्किल है। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ जितने कुफ्फार थे उन सबको खत्म करने के लिए अल्लाह ताला का ये अज़ाब आया, पानी की शक्ल में, तूफान की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में। और फअनजयनाहु व मन मअहु फिल फुल्किल मशहून, उस कश्ती में जो सवार हुआ और उस कश्ती में सवार होने के लिए एक टिकट था। वो टिकट क्या था? ईमान कबूल करना। एक शर्त थी, वो शर्त ये थी कि ईमान कबूल करना। तो जितने लोगों ने ईमान कबूल किया, जैसे रिवायतों में आता है, बाद रिवायतों में कि 40 थे, बाद रिवायतों में आता है कि वो 80 थे, जो भी तादाद रही होगी, जिन्होंने ईमान कबूल किया उन सब को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में अपने साथ सवार किया। और फिर अल्लाह ताला का ये हुक्म था कि हर जोड़े को भी साथ रख लिया जाए मुख्तलिफ किस्म के हैवानात में से। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ किस्म के जो हैवानात थे उस वक्त मौजूद थे, उनके एक एक जोड़े को भी साथ रख लिया। मिन कुल्ली स्नैनी मिन कुल्ली ज़ौजैन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। लिहाजा ये सारी चीजें मैं जैसे कह चुका हूँ कि तौरात में तो ये भी है कि वो 3 मंजिला कश्ती थी और नीचे परिंदे थे और बीच में जानवर थे और ऊपर इंसान थे, वल्लाहु आलम। बहरहाल किसी भी तरतीब के साथ उसमें सब सवार हुए। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया अल्लाह के नाम से ये कश्ती चलेगी, अल्लाह के नाम से रुकेगी। लिहाजा कश्ती पहाड़ की तरह सरसर चलती रही और तूफान बढ़ता रहा, सैलाब बढ़ता रहा, सारे अहले कुफ्र खत्म हो गए। जब अल्लाह का फैसला पूरा हो गया तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारी जानिब से ये मुनादी की गई, ऐलान किया गया, वकीला या अर्दु इबलई माअकी, ऐ ज़मीन तू भी अपने पानी को जज़्ब कर ले। और
आसमान को हुक्म हुआ, ए आसमान तू थम जा, लिहाजा सैलाब खत्म हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक कश्ती एक पहाड़ी से जा लगी जिसको जूदी कहते हैं, और वहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ उतरे। धीरे धीरे इंसान बसता चला गया और फैलता चला गया और तरक्की करता चला गया और स्ट्रगल करते हुए मुख्तलिफ आबादियों को बसाता चला गया, और आगे बढ़ते बढ़ते यमन के इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद हजरत साम, जिनके बारे में आता है कि हम सब उन्हीं की नस्ल से हैं, हम सब सेमेटिक नेशन है, कहा जाता है सामी नस्ल के हैं। तो वो हजरत साम के कुछ नस्लों बाद एक साहब हुए जो बड़े जोरावर थे, बहुत ताकतवर थे, बड़े मेहनती थे, और उनका नाम था आद। वो यमन के जुनूब में आबाद थे। अगर आप यमन जाएं तो आप देखेंगे कि यमन जो है वो नॉर्थ में है, जिसको आप चाहे इंडियन ओशन कह लें, चाहे आप उसको अरबियन सी कह लें, एक ही समंदर के दो नाम हैं। अरबों की तरफ से उसको अरबियन सी कहा जाता है, हमारी तरफ से इंडियन ओशन कहा जाता है। तो उसके शुमाल में जब यमन शुरू होता है तो यमन में आदन शहर के ऊपर एक इलाका था जो मौजूदा दौर में तो बहुत से छोटे छोटे देहातों पर मुश्तमिल है, लेकिन उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 6000 कबल वो इलाका अल अहकाफ कहलाता था। अल अहकाफ, वहां ये हजरत आद की नस्ल तरक्की करती गई और कौम आद कहलाई। इनका नाम पड़ गया था कौम आद। बहुत ताकतवर थे, जोरावर थे, बड़े मेहनती थे, और इन्होंने बहुत से कैनाल्स जारी किए थे, चश्मे जारी किए थे, जिससे पानी बहता रहता था और जिसके जरिए से वो खेती बाड़ी करते थे। और इसके बाद से फन तामीर का ज़ौक़ इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लिहाजा ये मुस्तकिल इमारतें बनाते थे। और इमारतें जो बनाते थे उनका मकसद रिहाइश नहीं बल्कि मुकाबला। उनका मकसद ये था कि नुमाइश और नुमूद, दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए एक कंपटीशन की कैफियत थी, जिसके लिए वो बिल्डिंग्स तामीर करते थे। और आगे इंशाअल्लाह अभी ये तशरीह आने वाली है कि उसके लिए वो कैसे लोकेशंस सेलेक्ट करते थे, कैसे लोकेशंस का वो इंतखाब करते थे। लिहाजा ये कौम आज जहां फैली फूली और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इलाके के एतबार से भी और वक्त के एतबार से भी, ज़मान और मकान दोनों एतबार से जब दूर हो गई तो इनके अंदर गुमराहियां पैदा हो गई। ये बहुत बड़ा मसला होता है। जैसे हम लोग मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा से दूर हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी दूर हो गए, 1500 साल गुजरे, तो खुराफात हमारे अंदर बहुत सारी पैदा हो गई। लेकिन बहरहाल ये दीन आखिरी दीन है और इस दीन को क़यामत तक अपनी असली शक्ल में रहना है। इसीलिए अल्लाह ताला मुस्लिमीन मुजद्दिदीन भेजता रहता है। लेकिन पिछले अंबिया और रसूलों की उम्मतों के साथ ये मसला होता था कि जब जमाना भी और जगह भी दूर हो जाती तो एक नस्ल फिर एक ग्रुप बहुत बिगड़ जाया करता था। ये भी बहुत बिगड़ गए थे कौम आद। इनके बिगाड़ में अकीदे से लेके अमल सब कुछ को मुतासिर कर दिया था। अकीदे में शिर्क पैदा हो गया था और हत्तार नामी एक मजस्मा उन्होंने बना लिया था जिसकी ये पूजा करते थे। लाज़मी बात है कि ये जो मजस्मे आते हैं जिनकी पूजा होनी शुरू हो जाती है, ये शुरू में स्टैचू रहते हैं यादगार के तौर पर। ये अच्छे मकामात पर यादगार हो, वहां पहले हज़ाए नसब कर दिया जाता है। फिर उसके बाद से आने वाली नस्लें उनको फूल पहनाती, फूल मालाएं उनके गले में डालती हैं कि ये बड़े हीरोज थे, बड़ी यादगार चीज है, इनका एहतराम किया जाए। और फिर जब सैकड़ों साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर जो नस्लें आती हैं वो उनको पूजने लगती, सजदे करने लगती हैं और समझती हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ये मुस्तजाबुद दावत हैं, दुआएं कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे धीरे धीरे बुतों की पूजा और बुतों की इबादत कौमों में दाखिल होती रही और होती रहेगी क़यामत तक, क्योंकि ये शैतान की हिकमत अमली है, ये इब्लीस का मंसूबा है और इब्लीस क़यामत तक नाकाम नहीं होने वाला है, कोशिश करता रहेगा। लिहाजा ये शिर्क पैदा किया इब्लीस ने। और
وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جب ان میں بگاڑ بہت زیادہ آ گیا، سختی مزاج میں آ گئی اور جھگڑے بہت ہونے لگے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی زبردست پکڑ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت پکڑ کرنا۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی وہ آیت آ رہی ہے، اس کی ذیل میں تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ بھی ایک خامی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، لہذا ایک طرف شرک، دوسری طرف ظلم، تیسری طرف بس عمارتوں کے بنانے میں، فن تعمیر میں مقابلہ آرائی، بلا مقصد بے دریغ دولت خرچ کر رہے ہیں، جبکہ غربت کا عالم یہ کہ بہت سارے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ جب یہ حالات بگڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے کے لیے اور اس قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، لیکن اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرتے اور اس پر ایمان قبول کرتے، اس کے بجائے رد عمل کیا ہوا؟ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت جانتے ہیں آپ جھٹلانے کو کہتے ہیں، عاد قوم کا نام ہے، المرسلین پھر اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کی وضاحت گزشتہ اتوار میں تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں، اور اس وضاحت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کی رسالت کا، حضرت عیسیٰ کی رسالت کا، کسی بھی رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے تو وہ پورے دین کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے، کہتا ہے زکوٰۃ کو مانتا ہوں، حج کو مانتا ہوں، تو پھر وہ پورے دین کا منکر ہے، ایک جز کا منکر ہے، ایسا نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نماز کو بھی مانتا ہوں لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا، پورے دین کا وہ منکر ہے، اس کو پورا کافر قرار دیا جائے گا۔ دین کے کسی ایک جز کا انکار کر دینا یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کر دینا، یہ پورے قرآن پاک کا انکار، پورے دین کا انکار۔ دین میں حصے بکرے نہیں ہوتے، دین ایک اکائی کا نام ہے، ایک یونٹ کا نام ہے، یاد رکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رسول کا انکار کر دے اور سارے رسولوں کے احترام کی ہم بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنوں کو رسول و نبی بنایا، جن کے ناموں کی اللہ نے صراحت کر دی، ان سب کی نبوتوں اور رسالتوں کو ماننا یہ شرط ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے انکار کو سارے رسولوں کے انکار کا مترادف قرار دیا۔ قوم عاد نے کس کا انکار کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان رسول بنائے گئے۔ حضرت ہود کے انکار کو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کذبت عاد الرسول نے المرسلین، سارے رسولوں کا انہوں نے انکار کیا۔ گویا وہ نہ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، نہ حضرت نوح کو مانتے تھے، نہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، نہ حضرت عیسیٰ کو جو بعد میں آتے رہے، لیکن یہ کہ رسالت کے نظام ہی کو یہ نہیں مانتے تھے، رسالت کے نظام کے منکر تھے۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، اس وقت جب کہ انہی کے بھائی ہود نے، اخوہم کیونکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی رسولوں کے سلسلے میں، اور کہیں کہیں ایک دو مقامات پر اس سے ہٹ کر ہوا، ورنہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے رسول کو اسی قوم میں سے مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں مبعوث ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عربوں میں مبعوث نہ ہوتے، ایران سے آتے، روم سے آتے، تو پھر مکے والے تھوڑی مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خانوادے میں سے قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد ہی کے خاندان کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام پر رسالت نازل فرمائی اور کہا کہ اب آپ اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کریں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبوت کی سب سے پہلی بنیادی دعوت وہ توحید، لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ الا تتقون، کیا تم اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اور تقوی کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت ابھی آ رہی ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار اس کا مطالبہ کیا۔ فرمایا
इस قال لهم اخوهم هود الا تتقون, उस वक्त जबकि उन्हीं के भाई हूद ने कहा क्या तुम तकवा नहीं इख्तियार करते, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं अमानतदार रसूल हूँ, मैं अपनी दावत में किसी किस्म की कोई मिलावट या अपने नफ्स की जानिब से कोई बात करने वाला नहीं, मैं बहुत ही इखलास के साथ तुम्हारे लिए पूरी खैरखाही के साथ दावत दे रहा हूँ। ये अमीनुन का जो मफहूम है वो आप यूं समझ लीजिए कि पूरी खैरखाही, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत जो अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सिफत होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अद्दीन अन्नसीहा, दीन तो खैरखाही का ही नाम है, इंसानियत की खैरखाही, इंसानियत को तबाही व बर्बादी से बचाने का जज्बा, यही तो दीन की असल है। और इसी असल पर अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस होते, वो अपनी कौम के सिलसिले में बड़े खैरखा होते, बहुत उनको बचाने की कोशिश करते। और अमीनुन नासिहुन अमीन भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं गवारा नहीं करता कि तुम हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। लिहाजा वो तड़पते थे, वो रोते थे, वो अमली तौर पर दावत देते थे, वो नजरियाती तौर पर दावत देते थे, वो कौली तौर पर दावत देते थे, कोई कसर उठाकर नहीं रखते थे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की खैरखाही, यही हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इस उसलूब में है, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं बड़ा अमानतदार, जैसी आयत आएगी वैसे ही मैं तुमको सुनाऊंगा, बेकमोकास्ट, मेरी जानिब से कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई पेशी नहीं होगी, कोई इजाफा नहीं होगा, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मैं तुमको सुनाऊंगा। ये अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बना रखा था कि अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस अमानतदारी का कौमों को पहले से एतराफ हुआ करता था, ताकि आगे चल के जब रसूल बने तो शुबा न रह जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत उठाकर देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही अमीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन ही के नाम से वो याद किया करते थे और पूरी अपनी अमानतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रखा करते थे। उनको यकीन था कि हमारी अमानत में ज़र्रा बराबर खयानत नहीं होगी, यहीं पर महफूज। तो जब इंसान की छोटी छोटी अमानतों में एक इंसान ज़र्रा बराबर खयानत नहीं करता है और तब्दीली नहीं करता है और उसमें कोई कमी व बेशी नहीं करता, तो परवरदिगार की अमानत में आप सोचिए वो कैसे कमी व बेशी कर सकता है, हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये अल्लाह के रसूलों की नुमाया सिफत होती थी कि बड़ी अमानतदारी, और वही अमानतदारी होती थी कि वो वही सुनाते, और वही जब सुनाते तो ऐसी वजाहत के साथ सुनाते कि उसमें फिर अपनी शख्सियत, अपनी जात बीच में ना आती, पूरी की पूरी चीज बेकमोकास्ट सुना देते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसका ऐलान फरमाया, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। फिर मुतालबा फरमाया फत्तकुल्लाह व अतीऊन। यही दो चीजें जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाई थी, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। और मैं अर्ज कर चुका हूँ इसकी वजाहत करते हुए कि अल्लाह का तकवा क्या है, वाउ काफ या का क्या मफहूम होता है, अपने आप को अल्लाह ताला की नाराजगी से, उसके गजब से बचाना। अल्लाह के गजब से हम अपने आप को कैसे बचा सकेंगे? उसका सिंपल तरीका यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को नापसंद फरमाकर हराम कर दिया उनसे इंसान मुंह मोड़ ले, उनसे रुक जाए, उनसे बचे। जब मुहर्रमात से इंसान बचेगा तो यही तकवा है। जब ये तकवे की कैफियत पैदा हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला बंदे का रखवाला हो जाता है। जब बंदे के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला की अजीब व गरीब ताईद आती है, वो ताईद गैबी जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत में फरमाया, जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत में फरमाया, जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ मरहलों में इशारा फरमाया कि जब फैसले का वक्त आया और एक फैसला अल्लाह की नाराजगी का था, एक फैसला, एक मोड़ वो गलत था, दूसरा मोड़ अल्लाह ताला की खुशनुदी का, दूसरा मोड़ वो हलाल रास्ते का। और उस वक्त फिर अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो आयन मतलूब होता अल्लाह ताला को, वो रास्ता इख्तियार करते और उस पर अल्लाह की रहमत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
ایک طرف گناہوں کی دعوت، دوسری طرف قید و بند، لیکن وہ حلال زندگی، وہ حرام سے محفوظ زندگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا گوارا کیا کہ رب السجن احب الی مما یدعون، اللہ جس ناپاکی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں جیل پسند ہے مجھے، میں جیل میں سڑ جاؤں یہ گوارا ہے، حرام ہو یہ گوارا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو تقوی کے سلسلے میں ہمارا وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 باتیں ارشاد فرمائی تقوی کے سلسلے میں، 4 باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جواب جو ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہوتا ہے وہ بندے کے ساتھ، وہ ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ ارشاد فرمایا دیکھو جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اس کی خوشنودی والا راستہ اختیار کرو گے، اس کے غضب والے راستے سے بچ جاؤ گے، تو سب سے پہلی بات تم کو بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ تم مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہو، آزمائش آنے والی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بظاہر محسوس ہو رہا تھا جیل میں جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، ہم تم کو نکالیں گے مصیبت سے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تم کو ایسا لگے گا کہ ہم حرام روزی حرام نوکری نہیں کریں گے تو پھر بھوکے مر جائیں گے، کہا نہیں بھوکو نہیں مرے، ہم دیں گے تم کو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے ہم تم کو دیں گے جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تقوی کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، 10 سال وہاں قیام، واپسی میں نبوت و رسالت۔ تو آپ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملات فرمایا، اور یہ واقعہ بہت نکھر کر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنی تہجد پڑھ کر وہ مدینہ منورہ کی خبر لیتے تھے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی چور بور تو نہیں ٹہل رہا ہے، کیونکہ عام طور پر چوروں کا جو چوری کا وقت ہوتا ہے وہ وقت سحر ہوتا ہے، جب لوگ بہت تھکے ماندے سو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ خبرگیری فرمایا کرتے تھے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے تھے، ایک گلی میں ایک چھوٹی سی کٹیا کے پاس سے گزرے تو 2 خواتین کی آواز آئی، اس میں سے ایک ایجڈ خاتون تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی، جو اپنی نوجوان صاحبزادی سے کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی کہ دیکھو دودھ نتھار لو اور روشنی ہونے سے پہلے اس میں پانی ملا دو۔ وہ نوجوان لڑکی وہ اپنی ماں کو جواب دے رہی تھی کہ اماں یہ ٹھیک نہیں ہے، اماں یہ ٹھیک نہیں ہے، امیر المومنین کا اعلان ہے کہ دودھ اصلی بیچا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، لہذا یہ ملاوٹ کرے ہم، یہ مناسب نہیں۔ تو والدہ نے جواب دیا بیٹی امیر المومنین تھوڑی دیکھنے آ رہے ہیں ابھی اندھیرے میں۔ تو بیٹی نے کہا کہ لیکن اماں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، لہذا یہ حرکت ہم نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے، اور آپ سوچئے ایک جھوپڑی میں رہنے والی یہ غریب سی خاتون یہ تقوی کی راہ اختیار کر رہی ہے۔ اب یجعل لہ مخرجا کی تفسیر دیکھیے کہ اس کے بعد پھر ہوا کیا، اس لڑکی کا رشتہ، اس متقی خاتون کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے آیا، وہ پھر امیر المومنین کی بہو بن گئی۔ یہ ہے مخرج، اللہ تعالیٰ یوں راستے نکالتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو تم تقوی اختیار کرو، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور تم یہ سمجھو گے کہ بے برکتی ہوگی اور سود پہ ہم کاروبار نہیں کریں گے، ہمارے برادران وطن تو ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ان خیالات کو بلکہ ان برے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دو، پروردگار وہاں سے برکت دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہوا گیا تھا ہندوستان میں آج سے 40-50 سال پہلے، ابھی تو نوجوانوں کو اندازہ نہیں ہے، پولیس ایکشن ہونے کے بعد جب نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے عرب خطوں میں پیٹرول نکال کر سارے مسلمانوں کو وہاں پہ ملازمت دے دی، تو دنگ رہ گئے ہمارے برادران وطن، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم ان کو محروم نہیں کر سکتے۔
हम इनको महरूम नहीं कर सकते रिस्क से। अल्लाह ताला देने वाला है, वो कहां से देगा बंदा गुमान भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। लिहाजा 80s में बल्कि उससे पहले 70s में जो सिलसिला शुरू हुआ जाने का, जिस तरह लोग जाते चले गए और उसके बाद से फिर कमाते चले गए, और आपको अंदाजा है कि पिछली जनरेशन उसकी वजह से कितनी तरक्की करी, तो हमारे नौजवान हरगिज यह न सोचे कि अगर वो नाजायज उम्र में मुलविज ना हो तो फिर वो तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहीं, तक़वे का तकाजा ये है कि वो कुर्बानी दें, और अल्लाह का वादा ये है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। व यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। तीसरी चीज इरशाद फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु फुरक़ानन। जब तुम तक़वा इख्तियार करोगे, अल्लाह ताला तुमको एक शऊर देगा, एक सलीका देगा, एक सोचने का अंदाज देगा, जिसकी वजह से तुम फर्क करोगे अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, जिसकी वजह से तुम फर्क करोगे गुनाह क्या है, नेकी क्या है। ये शऊर तुम्हारे अंदर तरक्की पाएगा, और ये शऊर जब तरक्की पाता है, यही फुरकान फिर इंसान के अंदर एक ऐसा नूरे बसीरत बन जाता है जिसकी वजह से वो हक को समझता है, सच्चाई को समझता है, गुमराही का शिकार नहीं होता, हमेशा अल्लाह ताला की खुशनुदी पर वो गामजन रहता है। और इरशाद फरमाया चौथी चीज ये है कि अगर तुम्हारे दिल में ये जज्बा है कि हराम चीजों से बचा जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए, जिंदगी में तकवा आ जाए, अल्लाह का तकवा हो, तो फिर उसके बाद से जो छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी उनको अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, नजरअंदाज फरमा देगा। इरशाद फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही। उसके जितने गुनाह होंगे, लग़्ज़िशें होंगी, वो यग़फ़िर लहु, उन सबको अल्लाह ताला माफ भी कर देगा, उन पे पर्दा भी डाल देगा। माफ करना दो तरह का होता है ना, कि अगर किसी के मुलाजिम ने किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में गलती की, चोरी कर दी, उसको पूरे मजमे में खड़ा करके ऐलान करवाया जाए, तुमने चोरी की, इतने पैसे लिए, अच्छा तुम लिख के दे दो, आइंदा से हम अगर ये हरकत करेंगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, और उस पर गवाही और उसके ऊपर सारी चीजें तय कर दी जाए, और उसका एक ये रिकॉर्ड दस्तावेज भी रख ली जाए ताकि आइंदा वो फिर ये गुनाह करे तो बताकर उसको नौकरी से मुअत्तल किया जाए। एक ही अंदाज है माफ करने का, और एक अंदाज ये है कि निगाहों निगाहों में मैसेज दे दिया कि तुमने गलती की, याद रखो आइंदा गलती न करो, मैं तुम्हारी गलती माफ कर रहा हूँ। ये पर्दा डाल देना कि दूसरों को वाकिफ भी न कराना। लिहाजा अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि न सिर्फ ये कि जब तुम्हारे अंदर तकवा होगा तो न सिर्फ ये हम तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे, बल्कि पर्दा डालेंगे, जलील रुसवा भी नहीं होने देंगे, लोगों के सामने तुम्हारे गुनाह भी नहीं आएंगे, छुपा देंगे हम उन गुनाहों को। ये कैफियत पैदा होती है उसको जब बंदे के अंदर तकवा पैदा होता है। ये पहली दावत है अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। और फिर क्या इरशाद फरमाया, हम नहीं तकवा इख्तियार कर सकते, हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते, हम सिरात मुस्तकीम को नहीं पा सकते, हम ये राह इस्तिकामत नहीं इख्तियार कर सकते ता वक्त के नबी के पीछे पीछे, रसूल के पीछे पीछे न चले। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वातिऊन। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात ये कही, और मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो। देखो मैं कैसे नमाज पढ़ रहा हूँ, देखो तुम मैं कैसे खैर खैरात कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे लेटता हूँ, आराम करता हूँ, सुबह मेरी कैसी होती है, शाम मेरी कैसी होती है, मेरे अंदाज पर चलो, यही तकवा है, और यही मेरी सुन्नतों पर अमल कर लेना तुम्हारी कामयाबी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब जब रसूल को भेजा तो इसी हिकमत के साथ भेजा, कि रसूल को हमने भेजा ही इसलिए कि रसूल की पैरवी हो, रसूल की जिंदगी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को ढाल ले, उसी साँचे में ढाले, क्योंकि वो जो साँचा होता है, रसूल जो आइडियल होते हैं, वो जो नमूना होते हैं, वो सबसे अल्लाह ताला को पसंदीदा होता है। अब जो जितना करीब आ जाएगा उतना कामयाबी से करीब, कोई हो सकता है रसूल से 50% करीब, तो वो 50% करीब है अपनी कामयाबी से, कोई हो सकता है 75%, कोई हो सकता है 99%। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे सानी, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते थे, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल करते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वैसे ही करना शुरू किया। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, जितनी उम्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई उतनी उम्र हजरत अबू बकर को दे दी कि इसमें भी तुम्हारी एक पैरवी और इत्तिबा निखर कर आ जाए। जब आप अपने अंदर
जज्बा पैदा करेंगे इताअत का, फर्मा बरदारी का, तो फिर अल्लाह ताला इस राह को आसान करेगा। और जो चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं है पैरवी के सिलसिले में, वो चीजें अल्लाह ताला कुदरती तौर पर दे देगा। रसूल की उम्र, रसूल की बहुत सारी चीजें, वो अंदाज जो फितरी होती हैं, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत होती है पैरवी का जज्बा हो। और पैरवी भी कैसी? अल्लाह ताला ने इताअत से आगे की बात फरमाई है। इताअत किसको कहते हैं? हम कानूनी तौर पर पैरवी करना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे नमाज वैसे नमाज पढ़ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रोजा रखते थे वैसे रोजा रखना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हज फरमाया था उसी नक्शे पर हज करना, ये इताअत है। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि एक बात और भी है, याद रखो आगे बढ़कर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इत्तिबा भी करो। इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा इताअत से आगे है। हुजूर ने जैसे कपड़े पहने थे वैसे कपड़े पहनने की मैं कोशिश करूं, हुजूर का चेहरा जैसा था वैसा मेरा चेहरा हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सोते थे, लाज़मी बात है, इस्लाम का तकाजा नहीं है ये, इस पे ईमान और कुफ्र का फैसला नहीं, लेकिन मोहब्बत का फैसला है। ये मोहब्बत की शरीयत है। हुजूर जैसे सोते थे मैं वैसे सो जाऊं, हुजूर जब सोते थे मैं वैसे सो जाऊं, हुजूर जब जागते थे वैसे मैं जाग जाऊं, ये इत्तिबा है। ये कैफियत जब बंदे के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर वो महबूब खुदा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे फिर मोहब्बत करेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के सबसे चहीते बंदे, जो उनसे जितना करीब हो जाएगा वो अल्लाह ताला की उतनी चाहतों का मरकज बनता चला जाएगा। लिहाजा ये इस्लाम है और इस्लाम का ये तकाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में बड़ी वजाहत के साथ ये मुतालबा आ गया कि रसूल की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि देखो ये अल्लाह का दीन इख्तियार करो, मुहर्रमात से बचो, तकवा इख्तियार करो, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, मेरे अंदाज में जीने की कोशिश करो। और इस सारी खैर खाही में, इस पूरी कोशिशों में, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, तुमसे जर्रा बराबर हम कोई मुआवजे के रवादार नहीं है, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, एक टाइम का खाना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबियों और रसूलों का आलम ये था कि वो इतनी एहतियात करते थे, इतनी एहतियात करते थे कि जहां शुबा हो जाता था ये मुआवजा नजर आएगा, मुआवजा होता भी नहीं बस नजर आएगा, उससे भी वो दूरी इख्तियार कर लेते थे। और यही वो कैफियत थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तो किसी के घर में खाना नहीं खाना चाहते थे। जंगल में जाके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगली फलों को तलाश कर करके अपना पेट भर लेते, लेकिन इसराइलियों के घर में एक लुकमा खाना गवारा न करते कि कई लोग ये ना समझे कि खाना खाने के लिए, चंदा करने के लिए, दावत वसूल करने के लिए मैं दावत पेश कर रहा हूँ। ये अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की एहतियात, और यही वो एहतियात थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि अब आले हाशिम को, बनी हाशिम को तुम ज़कात भी नहीं दे सकते, ताकि लोगों को गलत फहमी भी ना हो कि चंदे के लिए और पैसे बटोरने के लिए ये सारी कोशिश हुई। तो फरमाया ने हमारे खानदान वाले चाहे भूखे मर जाएं लेकिन तुम इनको ज़कात भी नहीं दे सकते, ज़कात तुम तुम्हारे अपने गरीबों को दे लो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला आला रब्बिल आलमीन, बेशक मेरा अजर तो बस मेरे उस परवरदिगार के जिम्मे है जो पूरी कायनात का मालिक है, पालनहार है। लाज़मी बात है कि ये परवरदिगार मौला रब्बुल आलमीन जैसे मुआवजा देगा, जैसे अजर देगा, इंसान क्या दे सकता है। लिहाजा ये रसूलों का अंदाज था, ये अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मनहज था, जिसकी नुमाइंदगी करते हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमा दी। और इरशाद फरमाया तबनून बिकुल्ली रिइन आयतन ताबसून, हर ऊंचे मकाम पर एक बिल्डिंग बना देते हो बेकार के, हर ऊंचे मकाम। इरमाज़ातिल इमाद, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया ये सुतूनों वाली कौम थी, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतने ताकतवर थे कि किसी शहर में ऐसी कौम नहीं पैदा की गई। हर जगह मेहनत करके, मजदूरी करके लगे हुए बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। लिहाजा जो हिल स्टेशन पाते
वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी कर देते, अतबनुन बिकुल्लि रि'इन आयतन ताबसून व तत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, और ऐसे ऐवान बनाते हो, महल बनाते हो जैसे हमेशा तुमको इनमें रहना है। हालांकि इन महलों में और इन ड्योढ़ियों में, इन हवेलियों में इंसान को रहना नहीं, छोड़कर चले जाना है। बहुत इबरत हुई मुझे उस वक्त जबकि इस्तांबुल में हमने उनका महल देखा, जो आखिरी वहां के खलीफा हुए सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। इतना खूबसूरत महल, इतना खूबसूरत महल। महल किसको कहते हैं आप वहां जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। उसका एक एक कमरा, उस एक कमरे पे आपका खलवत और आपका फलकनुमा कुर्बान, एक एक कमरा, हर कमरे की एक तारीख, उसका फानूस मुनफरिद, उसकी कालीन दुनिया की सबसे लंबी कालीन, उसका सोफा दुनिया का सबसे नादिर तोहफा। हर एक एक कमरा है कि आप यूं समझ लीजिए आज हमारे बड़े बड़े घर उतने बड़े नहीं होते, कई सैकड़ों फीट मुरब्बा पर मुश्तमिल ऐसे खूबसूरत कमरे, इतना खूबसूरत, लबे साहिल, बिल्कुल समंदर के किनारे, बड़ी प्यारी आबो हवा, इतना बेहतरीन महल कि आप अंदाजा नहीं कर सकते जब तक कि आप वो महल देख ना लें। क्या उसकी छत, क्या उसका फर्श, क्या उसका फर्नीचर, लेकिन वो रह नहीं सके और उनकी खिलाफत को खत्म कर दिया कमाल अतातुर्क ने। और जब कमाल अतातुर्क ने उनकी खिलाफत को खत्म किया, खुद सरबराह बना, तो उसको शौक हुआ कि मैं इस महल में रहूं, लिहाजा उसने कसरे सदारत मुंतकिल किया और वो महल में शिफ्ट होते ही उसको भी अल्लाह ताला ने मौत से दोचार कर दिया। आज तक घड़ियां उस पर रोक दी गई जिस वक्त उसकी मौत हुई थी, उसी आप देखेंगे हिंसे पे रुकी हुई, उसी फिगर पे रुकी हुई है। 12 बजे के आसपास सारी घड़ियां महल की बंद कर दी गई, आज तक बंद पड़ी हुई हैं और सिवाय इबरत खाने के जाए इबरत के वो महल कुछ नहीं है। क्या इंसान समझता है लअल्लकुम तखलुदून, हमेशा रहोगे, कितना शानदार बना लो, लेकिन तुमको रहना नहीं है। न लाल किले वाले लाल किले में रह सके, न गोलकुंडे वाले गोलकुंडे में रह सके, न फलकनुमा वाले फलकनुमा में रह सके, न किंग कोठी वाले किंग कोठी में रह सके। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े महल बनाने वाले वो महल में बाकी नहीं रहे। ये तमद्दुन में जब मिजाज बिगड़ जाता है ना, तो हर तफरीगाह पे बंगला बनाने का इंसान के अंदर रुझान पैदा हो जाता है। और जब मिजाज ठीक ठाक तरक्की का रहता है तो फिर हारून रशीद ने दारुल हिकमत बनाया था, साइंटिफिक रिसर्च का एक मरकज बनाया था, एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिससे कौमों में उरूज आया था। इतना उरूज आया था कि बगदाद से स्पेन को कवर किया गया और स्पेन से पूरे यूरोप को कवर किया गया, पूरे यूरोप को पढ़ाया मुसलमानों ने। अब जब जवाल आता है तो फिर लाल किले बनते जाते हैं, फलकनुमा बनते जाते हैं और ये खाली पड़े रह जाते हैं। तालीम पे खर्च हो, रिसर्च पे खर्च हो और इंसानियत की फलाह बहबूद पर खर्च हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इंसान नहीं, जिन के इंजीनियर थे, जिन में इमार थे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महल नहीं बनवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी बड़ी बड़ी देगे बनाई जिसमें खाना पकता था और सारी की सारी कौम खाना खाती थी। उनकी फलाह के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दौलत वक्फ कर दी। ये जब इंसान की फलाह के लिए दौलत वक्फ होती है, इंसान की तरक्की के लिए दौलत खर्च होती है, तो फिर उरूज आता है। और जवाल उस वक्त आता है जब शख्सियत के लिए अपने लिए 8-8, 9-9 बंगले बनाते जा रहे हैं, जबकि एक में भी रहना मुश्किल है, एक में भी रहना मुमकिन नहीं, सबको छोड़कर जाना है। वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, और तुम ऐवान और महल और हवेलियां बनाते हो ऐसे जैसे कि लअल्लकुम तखलुदून, हमेशा तुम रहोगे। खालिदीन का लफ्ज कितना है कुरान मजीद में, जिसके माने हमेशा, खुलूद के माने हमेशा रहना। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लगता है मौत ही नहीं आएगी। याद रखो, अल्लाह ताला कुरान पाक में दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, आलीशान महल में, किलों में, फसील बंद हवेलियों में रहो, लेकिन मौत तो आकर रहेगी, मौत को थोड़ी रोक सकते। लिहाजा जब मौत आनी ही है तो फिर मौत की तैयारी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत, होशियार आदमी वो है, याद रखो, जो मौत के बाद की तैयारी करे।
वल-आजिज़ु, और निकम्मा आदमी वो है जो तमन्नाओं पे तमन्नाएं, ख्वाहिशों पे ख्वाहिशें और ख्वाहिशात की तकमील में इस दुनिया से चला जाए। एक चीज तो ये थी जिसका तस्करा किया हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने। ये कौम आज की बड़ी आदत थी, बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, बहुत महल, बड़े बड़े दीवान, बड़े बड़े ऐवान, और उसमें पूरा फर्नीचर और वो वेल फर्निश्ड, आप समझ लीजिए कि ऐश का हर सामान मौजूद। नंबर 2, इज़ा बतश्तुम जब्बारी, और जब किसी से भीड़ जाते तो फिर बहुत जुल्म करते थे, और जब तुम किसी की पकड़ करते हो तो बहुत जालिमाना पकड़ करते हो, ऐसी पकड़ करते हो कि तुम जरा बराबर माफ नहीं करते। कि खुद का आलम यह है कि परवरदिगार की माफी पे वो कर रहा है, मौला उसको माफ कर रहा है, मोहलत दे रहा है, तभी तो वो जिंदा है। लेकिन जब वो अपनी किसी मुलाजिम की पकड़ करता है, अपने किसी छोटे की पकड़ करता है, तो जरा बराबर माफ नहीं करना चाहता, पूरा का पूरा बदला लेना चाहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि जो नरमी से महरूम हो गया वो खैर से महरूम हो गया। इंसान के मिजाज में नरमी होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। कितना माफ फरमाते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर दरगुजर फरमाते थे गलतियों से, इतना गलतियों से दरगुजर फरमाते थे, इतना दरगुजर फरमाते थे कि अगर इंसान के ईमान की पूरी तरबियत ना हो तो बात बातें समझ में नहीं आती आज कि मुनाफिक है, बदतमीजी कर रहा है और कह रहा है कि हम मुअज़्ज़ज़ मदीने के लोग इन मुसलमानों को जलील करके निकाल देंगे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुंच रही है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा रहे हैं। और फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे पता है मुनाफिकों का सरदार कौन है, मैं जानता हूँ। तो हजरत उमर ने कहा फिर अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए, मेरी तलवार हाजिर है। जब इतना बड़ा दुश्मन है वो इस्लाम का, मुसलमानों का, और आपकी शान में गुस्ताखी करता है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। तो फरमाया नहीं, ये तो उमर नहीं कर सकते, वरना लोग कहेंगे मोहम्मद अपने साथियों को भी कत्ल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना दरगुजर के वो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल और मर गया, और मरने के बाद उनके फर्जंद जो बड़े नेक दिल सहाबी है, नौजवान दौड़ते हुए आए और कहा अल्लाह के रसूल आप अपना कुर्ता दे दीजिए, मैं उसके कफन में आपका कुर्ता रखना चाहता हूँ, क्योंकि वालिद थे मेरे जैसे भी थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर दिया। हजरत उमर तड़प गए, और हजरत उमर चाह रहे हैं कि रोका जाए कि अल्लाह के रसूल का कुर्ता उसके कफन में मिल रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। हजरत उमर कहते हैं मैं कैसे इंटरफियर होता। कुछ देर बाद कहा जनाजा तैयार है, नमाज जनाजा के लिए चलिए। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आड़े आकर कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, नमाज जनाजा तो आप ना पढ़े कम से कम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हजरत उमर ने कहा ये कैसे हो सकता, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, कि अगर उनकी 70 मर्तबा आप मग़फ़िरत मांगेंगे तब भी अल्लाह उनको माफ करने वाला नहीं। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर 71 मर्तबा में इस्तिग़फ़ार करूं और अल्लाह माफ कर दे तो मैं 71 मर्तबा इस्तिग़फ़ार करने तैयार हूं, 70 से आगे भी आए जाने में तैयार हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। हजरत उमर कहते हैं मैं परेशान था कि अल्लाह के रसूल को मैं रोक भी नहीं सकता, बस ज्यादा से ज्यादा मशवरा दे सकता हूँ। अल्लाह के रसूल जो करेंगे वो लाज़मी बात है, फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन मैं मुनशरे नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था कि इसकी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल पढ़े। मस्जिद नबवी पहुंचते पहुंचते जहाँ पे कि जनाजा रखा गया था वहां पहुंचते पहुंचते अल्लाह के रसूल लौट गए और कहा तुम लोग पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने पूछा क्यों, हज़रत उमर कहते मैंने पूछा क्यों, कहा अभी वही आ गई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा, ऐ नबी ये इन मुनाफिकीन में से जिनमें से 36 की लिस्ट अल्लाह ताला ने बता दी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि इनमें से कोई मर जाए तो आप इनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। अब मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया। वरना रवादारी, माफ करना, नरमी और उम्मत के सिलसिले में इतनी नरमी कि आप जानते हैं हजरत काब इब्ने मालिक वो तबूक में सफर में शामिल नहीं हो सके। तबूक के मकाम पे पूछा कि काब नजर नहीं आ रहे, एक साहब ने कहा वो मुनाफिकों के साथ है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हरगिज तुमको ये कहने की इजाजत नहीं, ये लफ्ज तुम नहीं कह सकते। हो सकता है कोई परेशानी की वजह से वो रुक गए होंगे, हो सकता है कोई उनको मशक्कत पेश आ गई होगी, कोई दिक्कत पेश आ गई होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दरगुजरी का मजस्मा थे। सरा तक़वा माफ करना, ये रिफ्क, ये नरमी मिजाज की ये मतलूब है, याद रखिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये तो मामूली इंसानों की आदत है, बड़े इंसानों का आलम ये होता है पत्थर खा के दुआ देना। बड़े इंसानों का मिजाज ये होता है कि जख्मी होने के बाद जख्मी होठों से अपने दुश्मन के लिए दुआए खैर करना। ये कौमें आज में बिल्कुल नहीं था, और उनके बारे में तारीख में रिवायतें आती हैं कि वो अपने लेबर से काम लेते थे तो उनके हाथ में कोड़े होते थे कि जब वो रुक जाते तो उनकी पीठ पे कोड़े बरसाया करते थे। ये वो मिजाज था जिसके बारे में फरमाया वइज़ा बतशतुम जब्बारी, जब पकड़ करते हो तो जालिमाना पकड़ करते हो, नरमी तुम्हारे अंदर नहीं है। लिहाजा अल्लाह के मामले में तो तुम उसकी नरमी की वजह से जी रहे हो, और उसके बंदों के मामले में तुम इतने सख्त हो। फतकुल्लाह, फिर कहा वही ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अतिऊन, मेरे रास्ते पर चलो, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तालमून, और याद रखो कि उसी जात का तक़वा इख्तियार करो जिसने तुमको इनायत फरमा, जिससे तुम वाकिफ हो, जिसके बारे में तुम जानते हो जो जो चीजें तुमको मिली हुई हैं वो क्या है। अमद्दकुम बिअनआम, उसने चौपाए इनायत फरमाए। वो बनीन, आल औलाद, खानदान, कुंबा, औलाद वाले, वो समझते हैं कि औलाद कितनी बड़ी नेमत होती है, आंखों की ठंडक होती है। लिहाजा इरशाद फरमाया कि देखो उस परवरदिगार ने जो तुमको मवेशी इनायत फरमाए, आल औलाद इनायत फरमाई, वो जन्नत व अयून, और ये बागात जिसके बारे में मैंने तस्करा किया कि उन्होंने कैनाल्स खोद रखे थे और उन नहरों की वजह से उनके बड़े बागात थे, बड़ी तरक्की उन्होंने कर चुकी थी, लेकिन अल्लाह की बात मानने तैयार ही नहीं हुए। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया और जब देखा कि ये लोग बिल्कुल नहीं बाज आ रहे हैं, जिद पर है, तो फरमाया इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मेरे कौम के लोगों, एक दर्दनाक अजाब की मैं तुमको पेशन गोई करता हूँ। मुझे अंदेशा है कि इसी नाफरमानी के रास्ते पर तुम चलते रहोगे, यही अल्लाह ताला के साथ बगावत करते रहोगे तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जवाब में क्या कहा, कालू सवाउन अलैना अवाज़ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, हमारे लिए बराबर है जनाब आप वाज करें या न करें, नसीहत करें या न करें, आप समझाएं न समझाएं, हमारे लिए बराबर है, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं है। क्यों, इन हाज़ा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, यही दकियानुसी किस्म की चीज है। क्या, इन हाज़ा इल्ला, कुछ नहीं है ये सिवाय इसके खुलुकुल अव्वलीन, पिछलों का तरीक़े कार, पिछलों का अंदाज, ऐसे ही समझाते रहना। आउट ऑफ डेट किस्म के लोग हैं, दकियानुसी किस्म के लोग, वही पुरानी बातें, वही मजहब, वही आखिरत, वही कब्र, ये सारी बातें पुरानी हैं, एक जमाने से चली आ रही हैं, और नए तकाज़े जो है वो आप उस पर बात कीजिए, जरा सा नए मैनेजमेंट की बात कीजिए, आप इंडस्ट्री की बात कीजिए, आप ये कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट की बातें कीजिए, दुनिया की ये बातें कीजिए। कब तक आप मजहब की बातें करते रहेंगे, अल्लाह की दुहाई देते रहेंगे, नाउज़ु बिल्लाह। चाहे आप हमको समझाएं न समझाएं, दोनों बराबर है, और ये पिछले लोगों का तरीक़े कार है। कभी हम पर अजाब नहीं आएगा, हम किसी अजाब से नहीं डरते, हमको किसी अजाब का डर नहीं है। लिहाजा उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुन ली, इस्लाम कबूल कर लिया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल पड़े। अब अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म आया कि ऐ हूद, आप हिजरत कीजिए, अहकाफ की इस वादी से अब आप निकल पड़े, धीरे धीरे आप रवाना हो जाएं। लिहाजा रिवायतों में आता है, इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा है कि 300 के करीब हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, या ज्यादा रहे होंगे या कुछ कम रहे होंगे। ये पूरा काफिला धीरे धीरे रवाना हो गया, और अहकाफ की वादी से निकल कर अब जो हज़रमौत है, आज एक शहर है हज़रमौत, वहां तक ये काफिला पहुंचा कि अचानक अल्लाह ताला का अज़ाब आया। फकज़्ज़बूहु फ़अहलकनाहुम, उन्होंने झुठलाया हज़रत हूद को
اور حد سے تجاوز کیا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور کیا ہلاک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما کہ ایک آندھی آنی شروع ہو گئی اور وہ آندھی مستقل چلتی رہی. بہت ٹھنڈی ہوائیں تھی، انتہائی سخت تیز ہوائیں تھی جو چل رہی تھی اس بستی پر. کتنے دن؟ وہ 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی. اتنی تیز ہوائیں تھی، اتنی تیز ہوائیں تھی کہ ان کی بلڈنگیں تباہ ہو گئی. اتنی تیز ہوائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے کھجور کے تنے جن کے اندر سے مواد مغز نکال لیا گیا ہو، منقعر ارشاد فرمایا ایسے کھجور کے تنے جو کٹے ہوئے ہوں، جس کے اوپر سے جڑ سے کاٹ دیا گیا ہو، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، خالی اور بودے قسم کے کھجور کے تنوں کی شکل میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی رہ گئی. ایسی زبردست آندھی کہ ایک ایک انسان کو اٹھاتی 200 فیٹ اور اس کے بعد الٹا اس کو نیچے گراتی زمین پر. لہذا روایتوں میں آتا ہے دماغ پاش پاش ہو جاتا تھا، بھیجا وہ کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی اور سر گردن سے اڑ جاتا تھا، دھاڑ پڑا رہ جاتا تھا. اس طرح سے وہ پوری قوم ختم کر دی گئی. یہ قوم عاد تھی جو احقاف کے مقام پر آباد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایک زبردست آندھی آئی، ایسی آندھی جس کا مقابلہ ان کی عمارتیں نہیں کر سکی. وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. ہاں، حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر چکے تھے. حضر موت میں حضرت ہود علیہ السلام نے بستی بسائی. حضر موت میں حضرت ہود علیہ السلام کی وفات ہوئی. وہی وادی ہود کے نام سے ایک مقام ہے جہاں ایک قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے. بہت ممکن ہو زیادہ قرائن اسی کے ہیں کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر رہی ہوگی. اب انسانیت کا قافلہ چل پڑا، لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے. اور اب آپ دیکھیں نارتھ میں، آپ میپ اٹھا کر دیکھیں کہ نارتھ کی طرف یہ بڑھتے چلے گئے، کیونکہ احقاف کے بعد پھر ایک بہت زبردست قسم کا ڈیزرٹ ہے جو الرب الخالی کے نام سے مشہور ہے، جو یمن سے شروع ہو کر سعودیہ کے اوپر نارتھ تک چلا جاتا ہے. بہت بڑا صحرا ہے، دنیا کے بڑے صحراؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس الرب الخالی کے بعد جس میں کوئی انسانی بستی نہیں بس سکتی، اس کے بعد پھر بستیاں شروع ہو گئی اور پھر وہ بستیاں بستے بستے پھر آپ دیکھیں گے ملک شام تک چلی گئی. ان کی کیا داستان ہوئی، یہ انسانی قافلہ کیسے ترقی کرا اور ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آگے رکوع میں ارشاد فرمایا. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اس سنت کا تذکرہ کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ، اے انسانوں بڑی اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، درس عبرت ہے، نصیحت کا سامان ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تم کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، پرانی قوموں کی داستانیں نہیں، یہ قارینہ قصے نہیں ہے جو کہانی کی طرح سن سن کے سر دھنتے رہو. یہ تمہارے لیے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے، نصیحت کا سامان ہے. گناہوں سے باز آ جاؤ. تمہارے مزاج میں اگر قوم عاد کی بیماریاں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ آئے گا جو پہلے آ چکا ہے. تمہارے مزاج میں قوم سمود کی بیماریاں آئیں گی، اللہ کا وہی فیصلہ آئے گا جو قوم سمود پر آ چکا ہے. تمہارے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کی برائیاں پیدا ہوں گی، اللہ کا وہی فیصلہ آئے گا. یاد رکھو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ارشاد فرمایا تم گناہوں کو لے کر آؤ گے، تمہیں سزاؤں کو لے کر آؤں گا. کمزور نہیں پڑا نعوذ باللہ پروردگار. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دل نرم نہیں ہوتے، ایمان قبول نہیں کرتے، اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرتے، پھر اسی تاریخ کا چکر پھر چلتا ہے، پھر اسی سرکل سے گزرتے ہیں، اسی سائیکل سے گزرتے ہیں، وہی ہلاکت ہوتی، وہی تباہی، وہی بربادی ہوتی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر و بیشتر وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 8 مرتبہ اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ غور کر لو، دیکھو تمہارا پروردگار بہت غلبے والا ہے، بہت کنٹرول والا ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ جیسے وہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان نہیں کرتا، ویسے ہی وہ سزا وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو اندیشہ بھی نہیں ہوتا. وہ کبھی سونامی لاتا ہے، وہ کبھی زلزلہ لاتا ہے، وہ کبھی آندھی لاتا ہے، کبھی آسمان سے آگ برستی ہے،
कभी पत्थरों की बारिश होती है, कभी आसमान फट पड़ता है। उसका फैसला कहाँ से आएगा, उसकी सजा कहाँ से आएगी, याद रखो, उसकी पकड़ कहाँ से आएगी उसका तुमको अंदाजा नहीं है। वो बहुत गलबे वाला है, किसी से वो काम ले ले। और उसने बताया है तारीख में, कभी वो मेंढकों से काम लिया है, कभी वो खटमलों से काम लिया है, कभी वो खून से काम लिया, कभी वो बारिश से काम लिया, कभी उसने तूफान से काम लिया। वो किसी भी चीज से काम ले सकता है, लेकिन याद रखो वो बड़ा मेहरबान है, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम पर शफकत करता है, इसीलिए तुमको माफ करता है, बार बार माफ करता है, तुम्हारी बगावतों को नजरअंदाज करता है, तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करता है। वो हर सुबह ऐलान करता है, ऐ रात में गुनाह करने वाले आजा मेरी रहमत के आगोश में, मैं तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हर रात उसकी रहमत का ऐलान होता है, ऐ गुनाहों के साथ सुबह करने वाले, शाम हो चुकी है, तौबा कर ले, अपने मालिक के पास आजा, मैं तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तुम चल के जाते हो उसकी रहमत की तरफ तो उसकी रहमत दौड़ कर आती है, तुम एक कदम आगे बढ़ते हो तो उसकी रहमत 3 कदम आगे बढ़ती है, और तुम ग्लोब भर कर अगर गुनाह लेकर पहुंचो तो परवरदिगार तैयार है ग्लोब भर कर रहमतें लेकर तुम्हारे गुनाह माफ करने के लिए। वो ऐसा मेहरबान है कि रहीम, उसकी मेहरबानी जारी रहने वाली है, मेहरबानी खत्म नहीं होने वाली है। लिहाजा उसकी रहमतों के आगोश में आ जाओ। कब तक नाफरमानी करोगे, कब तक उससे बिगड़े हुए रहोगे, कब तक उससे नाराज रहोगे। सुबह का भूला हुआ शाम घर जब लौट आता है तो वो भूला नहीं कहलाता। लिहाजा उसकी रहमतों की तरफ लौट कर आ जाओ, तौबा कर लो, उसकी इताअत करो, फरमाबरदारी करो। और रसूलों को उसने आइडियल बनाया, लिहाजा रसूल के मुताबिक, रसूल के उसवे के मुताबिक जिंदगी बसर करो। यह तुम्हारी कामयाबी है, ये तुम उसकी रहमतों से माला माल होकर जन्नत की नेमतों से हमकिनार हो जाओगे। ये उसके वादे हैं, उसने तुम्हारे लिए बहुत सी मेजबानी तैयार कर रखी है। कब तक उससे नाराज होकर, दूर होकर जिंदगी बसर करोगे। बेशक याद रखो, इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, तुम्हारा परवरदिगार वो बहुत पकड़ करने वाला, बड़ी इज्जत गलबे कंट्रोल वाला, लेकिन वो बड़ा मेहरबान, बहुत ही रहम करने वाला है। यही दोनों कैफियतें जब मिलेगी तो तुम्हारा सही शऊर बनेगा, सही अकीदा तामीर होगा। लिहाजा अल्लाह ताला की रहमतों की तरफ आगे बढ़ो और देखो कि अगर नाफरमानी करोगे और नाफरमानी में आगे बढ़ोगे तो कौम समूद का क्या हश्र हुआ, उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने आने वाले रुकू में फरमाया। इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में आएगी, लेकिन आइंदा इस बार एक सफर की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सकूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इस रुकू की तफसीर आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।